Hello. I'm extremely thankful to all of you. From bottom of my heart, I express my gratitude of coming here. थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? Hello. थोड़ा जरा माइक प्लेसमेंट जरा थोड़ा सा Hello. यानी थोड़ा करीब लाना पड़ेगा आज का विषय है कंट्रोलिंग डेस्टिनी. थोड़ा सा हेलो. अब थोड़ा ऊंचा करिए हेलो. नहीं ऊंचा थोड़ा ऊंचा ऊंचा ऊंचा. एकदम ऊंचा नहीं ठीक है छोड़ दो हेलो. नहीं बहुत ऊंचा हो गया. बस ये ठीक. हेलो. तो व्हाट इज द डेस्टिनी? व्हाट इज कर्मा? Any action, right or wrong, a man takes, any part of the body, or by speech, or mind, is called karma. But there is a condition, involvement of the mind should be must. Suppose a man is reciting God's name by mouth, but his attention is towards negative side. So karma will be negative, not what is residing from the mouth of God. Because that means the seed, thought is a seed, not a words or seed. Thought is a seed and thought is energy. It has a vibration, it is a living force. That means energy, the thought is the seed and the fruits are destiny. Energy sent is what you are sending energy, same energy you are getting it back. Suppose you are throwing a white ball, you will get the white ball. If you are throw the bad ball, if dark ball, black ball, so you will see only a black ball. So karma and destiny depend upon law of karma, cause and effect. Past is the cause and present is the effect. And present becomes the cause and future becomes the destiny. Today topic which I am taking based on the views of Pavananda Hansa, I have gathered from his 3 books. One is Autography of Yogi, The Divine Romance and Man Eternal Quest. So first of all, he talks about the free will. What is the free will? Many people believe that our destiny is fixed. Our script is already written. Everything is predetermined. भाग्य में जो लिखा हुआ है कोई मेट नहीं सकता. भाग्य में जो लिखा है जो मिलता है उतना ही मिलेगा, न कम न ज़्यादा. And our fate is decided by karma, position of stars and lines on our palm. But Pamananji says it is all wrong. You can always shape your destiny. God has given a free will. That is a self-effort. That self-effort can shape your destiny. So how? Because this powerful tool is given only to human beings. If you say the animals, if you say the birds, उनकी fate fix है. Nothing can be changed. But a human being can change, can alter the direction of your fate in much better way through the self-efforts. So that is the topic, how free will से आप कैसे अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. Number 1, there are 3 types of karma, just feel. One is Kriyamini karma, that present actions. Second is Sanchit karma. A third is the Prabdha, that means destiny. So all Sanchit, what are Sanchit karma? Sanchit karma are all those karma, our past, previous births, all the karma from our past life till today. It could be bad, it could be good, both sides. So Pamanand says that you can always neutralize your bad karma, Sanchit karma, with good karma. Sanchit karma are intermediate stages of a plant and trees before it eats fruits. जब तक फ्रूट नहीं बनता
तब आप डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। जो बैड संचित कर्मा फ्रूट बनने वाले हैं, आप उसको रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गुड कर्मास। तो दैट इज द फर्स्ट ऑफ टाइम कि हर दफ़ा आपका बैड कर्मा गुड कर्मा, आपका बैड कर्मा फ्रूट देना शुरू हो रहा है, कितने अंदर प्लांट्स हैं हमारे, तो उनको आप रोक सकते हो बिफोर इट बिकम्स अ डेस्टिनी। नाउ द सेकंड इज, अगर डेस्टिनी फ्रूट बन जाती है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? क्या उसके इफेक्ट को कर सकते हैं? परमानेंट बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ? सो आज ये टॉपिक है कि डेस्टिनी जो प्रारब्ध कर्मा बन गई है, जो कहते हैं इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो उनका आज बताने वाले हैं वो कि कैसे हम अपने फ्री विल से, एफर्ट से उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। नंबर वन, पहला तो वो ये कहते हैं कि दो आदमी है, दे आर टू पीपल, बोथ हैव द सेम डेस्टिनी। दो बिजनेसमैन हैं, दोनों को नुकसान होना है, दे आर पोस्ट हैवी लॉसेस। एक आदमी है कि वो कुछ नहीं करता और उसको हैवी लॉसेस हो जाता है, और दूसरा आदमी वो जब देखता है कि मुझे लॉस हो रहा है, देन ही गोज वेरी डीपली वेयर आई एम इंक्रिंग लॉसेस, ही ट्राइज टू मॉडिफाई, ही ट्राइज टू कट डाउन हिज ओन एक्सपेंसेस एंड ही दो मिस्टेक्स जो की हैं उनको रेक्टिफाई कोशिश करता है। एट द एंड उसके लॉसेस होते हैं द मच लेस, पर उसको ब्लेसिंग डिस्कार्ज हो जाता है, बिकॉज निखर आता है कि उसे मालूम होता है कि यो आज मुझे नुकसान हुआ है, किन कारणों से हुआ है, दोबारा स्टेब्लिश करता है एंड ही बिकम्स ए वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन। वो निखर आता है और दूसरा बिखर जाता है। वो कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स हाउ यू इनकाउंटर अ सिचुएशन। ये आपके ऊपर है कि दो सर्कमस्टांसेस में जब स्ट्रगल है, आप उसको कैसे फेस करते हो। दैट इज ए फ्री विल, दैट इज फ्री विल। सेकंड है आपका कि आप फ्री विल से कैसे अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। दूसरा है कि आप परमात्मा को टोटल सरेंडर करिए। टोटल सरेंडर, नो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स सरेंडर करके आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सरेंडर मीन्स, गीता में दिया हुआ है कि 18 अध्याय में 64 है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामम एक शरण व्रज आम त्वाम सर्व पापे व्यो मोक्षयामि मा शुच। अब ध्यान से बोलते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जा, मैं सारे पापों को धो दूंगा, आप दुखी ना हो। पर उसमें एक शर्त बना रखी है, सर्व धर्मान परित्यज्य, मतलब कि आप ड्यूटी करो और उसके फल की इच्छा ना करो, आपका संघर्ष करना पड़ेगा। आप मुझे सरेंडर करते हो, यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ संघर्ष। जो आप सब कुछ विवश छोड़ दो, यू हैव टू डू कर्मा विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट्स। तो इसका मैं एग्जांपल बताऊं टू मेक इट मोर क्लियर कि द्रौपदी थी, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो वो सभी के देन ही स्टार्ट सबसे हेल्प मांग रही थी। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबसे कर रही थी। भीष्म पितामह, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो बेट कर रही थी, रो रही थी मुझे बचाओ, पर कोई उसकी शरण में नहीं आया। इतना संघर्ष होने के बाद उसने सबको परमात्मा में छोड़ दिया। जब इतने संघर्ष के बाद परमात्मा में छोड़ हो जाता है तो फिर उसकी विल नहीं, वो कहता है ये आपकी विल है, मेरी विल नहीं है, जो आपको करना, मैं आपकी शरण में आया हूँ। देन मैन विल बिकम द गॉड्स विल। जब हिज ग्रेस, उसका ग्रेस आ जाता है, विच द ग्रेस इज मोर पावरफुल लॉ ऑफ कर्मा, और परमात्मा उसको बचा लेता है। दैट मीन जो एफर्ट्स करते हैं आप, ईगो उसको डिसॉल्व कर, दैट ईगो को डिसॉल्व करना है। क्योंकि जब तक आदमी सोचता है कि मुझे कोई हेल्प करेगा, ये करे, दिमाग में होता है तो संघर्ष करता है। जब उसका संघर्ष खत्म हो जाता है, तो यही चीज़ मैंने 2 लाइनें में लिखा था। डिवाइन विल एंड ह्यूमन एफर्ट्स, ये मेरा आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में अप्रैल 15, 2018 में। इसमें मैंने लिखा है कि व्हेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जस्ट लिसन केयरफुली, एक वर्ड, व्हेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स नॉट अचीव्ड डिस्पाइट पुटिंग इन योर बेस्ट एंड ऑनेस्ट एफर्ट,
then the urge to surrender to the divine comes naturally, because at this stage the ego is totally removed, and you say with all humility, "Oh Lord," that He weeps, "I am completely exhausted. I have tried my best and failed. I realize I can't do anything without you. Do whatever you like." This is the stage of total surrender, when His grace starts flowing freely through Him. When you surrender your will at the lotus feet of Lord, then it becomes divine will. Then it becomes divine will. When it becomes divine will, then God's will is the ultimate results of your efforts. ये चीफ एडिटर ने लिखा है फ्रंट पेज में, ये था लिखा है, सुरेश खुंगर wonders if God's will is the fruition of our own effort at a path of self-surrender. So you have understood what is the self-surrender. So next question ये आता है, क्या परमात्मा हमारा डेथ लिखा हुआ है डेस्टिनी में, क्या उसको बदल सकता है? क्या डेथ भी बदल सकता है? तो परमानंद से यस, परमात्मा आपकी डेथ को भी बदल सकता है। हाउ? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेथ, 3 टाइप्स के हैं। एक है नेचुरल डेथ, जैसे हमको आती है नेचुरल डेथ, जब एज हो जाता है, मरना सबको है, कोई 60, 70, 80, 90, 100 जो भी है, तो उसको आप बढ़ा सकते हो, अपनी स्पैन को बढ़ा सकते हो बाय डीप ब्रीदिंग। अब मैं बताऊंगा कि डीप ब्रीदिंग से नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग होती है, जो हम ब्रीथ करते हैं वो 16 से 20 होता है। दैट मीन 1 ब्रेथ 1 मिनट में 16 से 20। तो ये 16 से 20 यू कैन डिक्रीज योर ब्रेथ रेट बाय डीप ब्रीदिंग। जितना डीप ब्रीदिंग होती है 1 मिनट में 12 ब्रेथ, ये डीप ब्रीथ होती है। नॉर्मली हमारी ब्रेथ होती है 1 मिनट में 16 से 20। और जब क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो ये 50, 60, 70, 80 हो जाता है। तो हमारा जो लाइफ मृत्यु है, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ कोटा विच गॉड में दिया है। इस ब्रेथ कोटा आप 100 साल से बड़ा डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। गुस्सा करते रहो तो आपका मृत्यु जल्दी आ जाएगी, बिकॉज यू एग्जॉस्टिंग दैट कोटा। तो पहला है कि आप डीप ब्रीथिंग से, और जो बताना वाला हूँ आपको, लास्ट टाइम बताया था, क्रिया जो है क्रिया योग, उससे आप ब्रेथ रेट को कम कर सकते हो। सेकंड है कि एक अनटाइमली डेथ है। एक बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि डेथ है, सर्टेन है। एक मार्कंडे ऋषि पुत्र था, मार्कंडे, और बेचारा 7 साल का बच्चा था। ऋषियों ने देख लिया कि उसकी उम्र 5-7 साल से ज़्यादा होने वाली नहीं है। उसने कहा तुमको कोई बचा सकता है तो माँ बंदी जो मंदिर बता सकता है, आप जाना मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, वहीं माँ मंत्री जी का मंदिर करो। बट यू हैव टू रेगुलरली, पूरी सेवा के साथ, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ करना है। उस बच्चे को इतना भयंकर तूफान आंधी आती थी, वो प्रवाह कर दे बका। ही यूज्ड टू गो टू लॉर्ड शिवा टेम्पल और उसको विधिवत करता था। जब उसका टाइम आया तो यमराज उसको ले आया, इमीडिएटली भगवान शिव प्रकट हुए, उसको बोला कि यू गो बैक, तुम्हारा काम नहीं है, अब ये मेरा काम है। उसकी मृत्यु टल गई। वो मार्कंडे ने जितने पुराण लिखे हैं, हमारे जितने पुराण हैं मार्कंडे ने लिखे हुए हैं, जिसकी मृत्यु 6 साल की थी, वो उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ हुई। और तीसरा डेथ होती है नेचुरल कैलेमिटी से, जैसे एक्सीडेंट हो जाना है, फ्लड आ जाने हैं, स्मोक होती है। क्या उसमें भी परमात्मा तुमको बचा सकता है? यस, उसमें बचा सकता है। अभी आपने कहा अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, पर एक आदमी बचा उसमें। ये संयोग नहीं थे, इट्स नॉट ए संयोग, उसके क्रियामनी कर्मा ने उसको बचा लिया। इतने भयंकर आग लगी हुई है, एक आदमी ने बचा और इतनी भयंकर आग से बचकर आ गया। इट इज़ नॉट ए संयोग। योगानंद जी कहते हैं हमारे यहाँ कोई संयोग नहीं होता। आप जो हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति है, पत्नी है, ये संयोग नहीं है, आपके प्रीवियस जन्म में एक रिलेटेड थे।
जिनके दोस्त मिलते हैं वो भी सब रिलेटेड है, ये सहयोग नहीं होता। एक बॉस मिल जाता है जो आपका लाइफ मिजरेबल कर देता है, आपने उसकी मिजरेबल की, आज वो आपको मिजरेबल कर रहा है। एक अच्छा बॉस होता है, वो आपकी हेल्प करता है, आपने उसकी हेल्प की, आज वो आपको हेल्प करता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ कर्मास। अब ये आता है नटशेल में कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बर्थ एंड डेथ के बीच में लाइफ स्पैन है। वो इसमें बी और डी के बीच में एक आता है सी। बर्थ और डेथ के बीच में क्या वर्ड आता है? बी सी डी। सी इज द चॉइस। द चॉइस इज योर्स। आप जो चॉइस आज कर रहे हैं, कल आप चॉइस आपको बनाता है। ये आफ्टर यू कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, गंदे कर रहे हैं। लाइफ इज बिग बिग क्राइटेरिया, बिग आपका कैफे है, ये बिग मॉल है, चीज़ें आपको खरीदनी है, गंदी चीज़ें खरीदनी है, अच्छी, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली ये इसी पर भी मैंने अल्टीमेट लिखा था कि सेल्फ एफर्ट्स जो है, ये भी मैंने किया, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, क्रिएट ए ब्यूटीफुल डेस्टिनी, ये भी आया हुआ है। इसमें मैं चीफ एडिटर ने लिखा है, ये 10 दिसंबर 17 का है, वो 18 दिसंबर का था। सुरेश खंगर सजेस्ट दैट इज आवर सेल्फ एफर्ट दैट अल्टीमेट शेप्स आवर फेट। सो दिस इज नटशेल। अब सेकंड आता है, आई स्विच टू सेकंड वन, कि डेस्टिनी बनती कैसे है, व्हाट आर द स्टेजेस वेयर योर डेस्टिनी फॉर्म। जो आप कर्म करते हैं, गुड और बैड, इट गिव्स ए इम्प्रेशन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। चित्त में, सबकॉन्शियस के डीप में वो इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन क्या बनाता है? आपके हैबिट्स बनाती है। हैबिट्स बनाती है आपका एटीट्यूड। जैसे हैबिट्स होता है वैसे एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका संस्कार, आपकी पर्सनैलिटी, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हैबिट्स। और दिस द एटीट्यूड विच अल्टीमेटली फॉर्म द डेस्टिनी। अगेन, व्हाट योर थॉट्स, बिकॉज स्टार्ट थॉट से करना है, इट बिकम्स योर एक्शन, व्हाट योर एक्शन, इट बिकम्स योर हैबिट्स, व्हाट योर हैबिट्स, it becomes your attitude. What your attitude? It becomes your destiny. There are 4 stages of a destiny. 4 stages. तो योगानंद जी ने कहा कि आपकी बैड डेस्टिनी कैसे बनती है, गुड डेस्टिनी कैसे बनती है। मान लिया यू गो ऑन कंट्रोलैप्टिंग, आप एक नेगेटिव साइड को सोचना शुरू कर देते हो, यू गो ऑन फोकसिंग ऑन नेगेटिव साइड योर लाइफ, तो इट फॉर्म्स ग्रूव्स इन योर ब्रेन सेल्स। आपके ब्रेन सेल में इट फॉर्म्स ए ग्रूव। सबकॉन्शियस माइंड में जो आप बोल रहे हैं ना इंप्रेशन, इस सेम थिंग इज आपके ब्रेन सेल में इट फॉर्म्स ए ग्रूव। जितना आप नेगेटिव साइड सोचना शुरू करो, दैट ग्रूव बिकम्स डीपर एंड डीपर। देन व्हाट आर द सोर्सेज, क्या नेगेटिव थिंग्स हैं? आज आप बताओ कि बार बार हम बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव, क्या हम व्हाट एग्जैक्टली नेगेटिव कंसिस्ट ऑफ। गीता में दिया हुआ है आपके 2nd अध्याय में, बड़ा इसका क्लियर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि आप व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं विषयों की तरफ, ध्यान आपका जाता है, तो यू स्टार्ट डेवलपिंग ए अटैचमेंट फॉर देम। That attachment gets converted into desire, and those bundle of desires, the bundle of desires becomes your vasanas. There are 3 types of vasanas. One vasana is काम वासना, जो सेक्सुअल की है, ग्रीड वासना, लोभ, और अहंकार वासना, ईगो। ये तीनों वासना आर सोर्स ऑफ ऑल नेगेटिव थिंग्स। और नेगेटिव में क्या आता है? ऑल डिराइव फ्रॉम दिस ओनली। रिवेंज है आपका, जेलसी है, ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, अनहैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, फियर है, ऑल दीज आर रिजल्ट ऑफ द ऑल दीज वासनास ओनली। एंगर आल्सो, हाउ एंगर इज फॉर्म्ड, आपका डिजायर फुलफिल नहीं होती, आपको गुस्सा आ जाता है, दैट इज सोर्स ऑफ एंगर। स्ट्रेस क्या होता है? जेलसी फील करते हो एक दोस्त के साथ, उसकी फर्स्ट क्लास आ जाती है, आपकी सेकंड क्लास आ जाती है, यू गेट डिस्टर्ब्ड,
आप स्ट्रेस में चले जाते हो। फिर जब स्ट्रेस के कई रीज़न हैं, जब आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती, यू गेट स्ट्रेस्ड। जब स्ट्रेस में चले जाते हो तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हो, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप ड्रंकन बन जाते हो, स्ट्रेस के रिलीव के लिए आप ड्रग खाने कर जाते हो। तो ऑल दीज हैबिट्स बन जाती है नेगेटिव साइड से। अब योगानंद जी कहते हैं कि ऑल दीज इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स कैन बी न्यूट्रलाइज विद द गुड हैबिट्स। अब गुड हैबिट्स कैसे बनती हैं? आप अच्छा सोचने पर बात का नाम करने लगो तो आपके ग्रुप ऐसे बनेंगे। तो ग्रुप जो ऑनेस्टी है, लव है, ब्लिस है, जितने आपका हैप्पीनेस है, दूसरों कंटेंटमेंट है, दूसरों की सेवा करना है, ये सब गुड हैबिट्स हैं। दीज आर न्यूट्रलाइज, बट ही कैटेगरी सेड कि आपके ये ग्रुप्स बन गया है, इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज विद द गुड थिंग्स, इट कैन रिड्यूस इट। बट ग्रुप जो बन गया है, सत्संग करो, पर संग साहब से ग्रुप कुछ मिनिमाइज होंगे, बट ये ग्रुप बन गया है आपके अंदर, इट कैन बी ओनली इरेज्ड by two things. One thing is the willpower, or second is meditation. Except these two, you cannot erase the grooves which are already formed in your brain cells. अब ये आता है कि ये बैड हैबिट्स बन गई आपकी, इसका इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज इम्पैक्ट? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है बैड हैबिट्स का कि यू बिकम पपेट ऑफ दैट। आप पपेट बन जाते हो, दैट स्टार्ट ट्रीटिंग यू, यू बिकम स्लेव ऑफ दोस हैबिट्स। कोई किसी को मर्डर करता है तो उसके बस में नहीं है, उसकी हैबिट कराती है, रिवेंज है, वो हैबिट कराती है। एक चोरी करता है, उसके बस में नहीं है। एक रेप्टिस्ट है, उसके बस में नहीं है। ये जितने एक्शन हम करते हैं हमारी हैबिट्स कराती है, यू आर स्लेव ऑफ दोस हैबिट्स। सेकंड है कि ये हैबिट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट बर्थ होती है। ये मत सोचो कि आदमी एक हैबिट बहुत ख़राब है, मर का एंजल बन जाएगा। इस गलती में मत रहना। योगानंद जी कहते हैं देयर नॉट ऑल्ट ऑफ चेंज इन द पर्सनैलिटी। जो आप मरने से पहले थे वही मरने के बाद है। आपके सारी गुड बैड हैबिट्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट बर्थ है। आप ड्रंकन है, ड्रंकन बनोगे। आप सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट बनेंगे। आप नशा करते हो, नशा बनोगे। आप जो आपकी गंदी आते हैं वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। इस जन्म की डेस्टिनी भी खराब हो रही है, अगले जन्म की डेस्टिनी खराब होती है। डेस्टिनी कैसे खराब होती है आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी नेगेटिव सोचता रहता है, जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, ही ऑलवेज थिंकिंग बैड साइड, हमेशा यही सोचता डार्क साइड और लाइफ सोचता रहता है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, परमात्मा के साथ ये किया, वो किया। ही मीन ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज थिंक डार्क साइड ऑफ लाइफ। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो एनर्जी है, ये थॉट्स हैं, ये वाइब्रेशन जो आप सोचते हो, इसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाती है और लौट कर आती है। आप सोचो अच्छा सोचोगे तो अच्छा आएगा, गंदा सोचोगे गंदा आएगा। इफ योर एटीट्यूड नेगेटिव, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव फॉर्चून। ऑलवेज अनलकी रहोगे, हर जगह आप दुखी रहोगे। आप परमात्मा को कहते हैं मेरी लक बना दो, मेरा लक बना। परमात्मा आपके लक नहीं बनाता, लक आपको खुद बनानी है। लक बनानी है तो कर्म अच्छे करो, अपना एटीट्यूड अच्छा रखो। एटीट्यूड खुश रहो, दूसरों को खुश करो, दूसरों को मदद करो, कंटेंटेड रहो, भगवान का थैंक्स करो। तो ये एटीट्यूड होगा तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट फॉर्चून फ्रॉम द यूनिवर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ जो आ रहा हूँ, जितने नेगेटिव, जितने आपके बैड हैबिट्स होंगे उतनी बीमारियां आपको घेरेंगी। अगर आपको बीमारियां आ रही हैं ओनली बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, ओनली बिकॉज बैड। कितनी कैसे, अब आज यहाँ पर आऊँगा कि हाउ बैड हैबिट्स रिलेशन विद योर इलनेस। परमानंद जी हंसा जी कहते हैं दैट डिजीज इज बॉर्न इन माइंड, नॉट माइंड इज ऑलरेडी माइंड। 90% आपकी बीमारियां माइंड से स्टार्ट होती हैं, ओनली 10% 5% या आपके पोल्यूशन से,
या रॉन्ग डाइट से 5-10% ही होती है। 90% इज बॉर्न बाई माइंड ओनली। माइंड ही काज ऑफ ऑल डिजीजेज। माइंड इज बिग हीलर। वो भी हील करता है। अगर आप हील करना चाहते हैं तो माइंड को हील करो, आपका शरीर अपने आप हील होगा। पिल्स जो है जो आपकी बीमारी इज नॉट इन द ब्लड स्ट्रीम। आपका ब्लड स्ट्रीम में पिल्स पोर करते जाओ, ये टेम्परेरी होगा। आपकी बीमारी लाइज इन द थॉट स्ट्रीम, नॉट इन द ब्लड स्ट्रीम। वी आर पोरिंग पिल्स एंड पिल्स एंड पिल्स, अपने को बीमार कर। जोगानंद जी ने कहा था कि मैं जब यंग था मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कोई चीज़ पचती नहीं थी। मेरे जेब में पूरा मेडिसिन का पैकेट होता था, पर दुबला पतला था। मैं अपने योगेश्वर जी में जो गुरु थे उनके पास गया कि साहब मुझे बचा दो, मेरा डाइजेशन वीक है, मैं क्या करूं, मुझे ये पिल्स नहीं कर। उन्होंने कहा मुकंद, उसका नाम मुकंद था, मुकंद घोष था, बना ये गोरखपुर के रहने वाले हैं योगानंद जी। वो बंगाल फैमिली से कि योगा का क्रिया योगा, क्रिया योग ही तुमको बचा सकती है। बिकॉज आपको इंटरनल हीलिंग करनी है, एक्सटर्नल हीलिंग से आपको कुछ नहीं होगा। दैट व्हाट ही सेड। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इंटरनल क्या अंदर हो जाता है कि हमको बीमारियां कैसे पैदा हो जाती हैं, हाउ द डिसीजेस कम। तो आगे बताने वाला कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में ये डॉक्टर जो है वो एक्सटर्नल है बॉडी, वो दे आर रिलेटेड टू द फिजिकल बॉडी। बट हमारा जो इंटरनल हीलिंग है जो एशियन टाइम दे रखा है, पर आपका एलोपैथिक आया अर्ली 19 में, आपका होम्योपैथ है लेट 18 में, आयुर्वेदिक आया 5000 साल में। उससे पहले क्या था, क्या होता था तब वैद होते थे, जड़ी बूटियाँ करते थे, पर सेल्फ हीलिंग से लोग करते थे। तो आज वो सेल्फ हीलिंग क्यों ख़त्म हो गई है? वो सेल्फ इसलिए हो गई है कि हमारी जो अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में फैली हुई हैं, पूरे शरीर में, हर बॉडी में जाती है, हर मसल में जाती है, हर बोन में जाती है, उनको नरिश करती है, उनको हील करती है। उस डॉक्टर का जो अंदर डॉक्टर है, ना तो वो फीस ले रहा है, ना आपको पिल्स दे रहा है, ना आपको ऑपरेशन कर रहा है, ना आपका सर्जरी कर रहा है, वो फ्री ट्रीटमेंट करता है। अंदर का उस डॉक्टर का नाम है प्राण ऊर्जा। अगर आपकी प्राण ऊर्जा पूरा 72,000 नाड़ियों में फैल रही है तो आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। आपको कोई जरूरत नहीं है डॉक्टरों के पास जाने की। तो वो प्राण ऊर्जा क्या है? ये नाड़ियों ने हमारे नेगेटिव थॉट्स ब्लॉक कर रखे हैं। नेगेटिव थॉट्स वही हैं जो हमारे बैड हैबिट्स हैं। यही बैड हैबिट के नेगेटिव थॉट्स हैं। जितने बैड हैबिट ज़्यादा होंगे उतने नेगेटिव थॉट्स उतनी आपके नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। जब ब्लॉक हो जाएंगी तो प्राण ऊर्जा नहीं बहेगी तो आग बीमारी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि आप मान लिया हमारे पंच वायु हैं जो हमारे शरीर को ठीक करते हैं। पंच वायु है, एक वायु है प्राण वायु, ये, और दूसरा है ये कफ से लेकर नाभि तक, इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है समान वायु, ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ये कफ को कंट्रोल करता है। और नाभि से लेकर नीचे तक अपान वायु, ये जितना हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। ये जब हमारी नाड़ियाँ क्लॉग हो जाती हैं तो 3 टाइप के दोष शुरू हो जाते हैं। हमारे 5 तत्वों से सारे शरीर का निर्माण होता है। 2 तत्वों से, एक आयुर्वेदिक के हिसाब से एक योग बना हुआ है, एक कफ दोष, ये 2, एक है वात दोष, एक नीचे वाला कफ दोष यहाँ का, उसके बाद पित्त दोष नाभि, यहाँ से लेकर आप फेफड़ों से लेकर आपके नाभि तक, ये जो पोर्शन है ये पित्त दोष बोलते हैं। जब आपके 2 जो जिनसे ये पित्त बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके नीचे वाला है वात दोष। ये 3 दोष तब आ जाते हैं जिससे सारी बीमारी होती है जब आपके 72,000 नाड़ी क्लॉग हो जाती है। यही आपका आयुर्वेदिक स्टार्ट होता है।
फिर मुद्राएं करो, ये करो, दवाई खाओ, ये करो, वो करो। आपका जितना ब्लड सर्कुलेशन है, ये व्यान 5 वायु हैं, ये व्यान योग है, व्यान वायु है। व्यान वायु हमारे ब्लड सर्कुलेट करता है। और योगानंद जी कहते हैं जितने हमारे जॉइंट पेन्स हो जाती हैं, जितने आप ऑपरेशन कराते हैं करने के लिए, यहाँ आपका कार्बोनेटेड ब्लड जमा हो जाता है। कार्बोनेटेड वेन्स में जो ब्लड होता है वो कार्बोनेटेड होता है, यहाँ जमा हो। तो आपका प्राण वायु, अगर जो आपकी प्राण ऊर्जा है, जो व्यान ऊर्जा है, इसको जमने नहीं देती, तो आपका ब्लड, जो आपके जॉइंट्स है वो सही रहते हैं। जॉइंट्स आपका तब जाते हैं जब यहाँ पर आपके कार्बोनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ही व्यान है, एक उद्यान है, यहाँ से लेकर एंड में आपके आंख कमज़ोर हो जाते हैं, कान आपका ये हो जाती है। ये क्यों हो जाते हैं कि यहाँ ऊर्जा आनी बंद हो जाती है, तो फिर आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, कान कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा अब क्वेश्चन होता है कि मैं प्राण ऊर्जा को कैसे जागृत करूं। तो प्राण ऊर्जा को जागृत करने का तरीका यही है कि प्राण वायु, व्हाट इज प्राण वायु ना, प्राण वायु है ऑक्सीजन, लड़ से जब प्राणायाम बोलते हो, प्राणायाम में प्राण वर्ड इज रेफर टू योर ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस को आप प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट करना है डीप ब्रीदिंग से इसको बनाना है आपको, और इसको सूक्ष्म शरीर भेजना है आपको। ऑक्सीजन ही भेजनी है, ऑक्सीजन गैस नहीं जाएगी, ऑक्सीजन ऊर्जा बनकर जाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्रिएट करनी पड़ेगी, और डीप ब्रीदिंग से आएगी। आप जो पिछला जिन्होंने अटेंड नहीं किया कोर्स, मैं फिर उनको बता रहा हूँ कि डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है आपने, कि आपका जब ब्रीथ करना है नाभि से करनी है, नॉट फेफड़ों से करनी है। नाभि से जब करोगे तो आपका ये पेट फूल जाना चाहिए, पूरा 5 सेकंड लगने चाहिए, कम से कम 5 सेकंड। 5 सेकंड करोगे तो 12 पंजे 60, मतलब आपका ब्रेथ रेट 12 हो जाएगा, जहाँ से आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। 6 करोगे तो और अच्छी बात है, 10 हो जाएगा, 10 to 6। तो जब इसको निकालोगे तो ये धीरे धीरे एक्सेल जब करोगे, धीरे करना है, और जब तक आपका पेट चिपक ना जाए। फिर आप देखिए, यहाँ से करूँगा ये पूरा फूलेगा, यहाँ तक ले जाता हूँ। पाँच सेकंड ऊपर, 5 सेकंड नीचे। तो इस करने से आपका डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, और इसको आपका एडवांटेज भी होगा, आपका आयु भी बढ़ेगी, जैसे मैंने बोला था आयु बढ़ेगी। दिस द वे। नाउ आगे हम आते हैं कि लेट अस गो, कि ये आपका जो प्राण ऊर्जा है, इट इज ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन सत्संग है। क्यों हम अपने शरीर को शट डाउन नहीं कर सकते। शरीर को शट डाउन, जो कि कंप्रेसर चलता रहता है साल भर, हम शट डाउन करते हैं, कार की सत्संग करते हैं, इसकी सत्संग हम नहीं कर सकते। इसलिए प्राण ऊर्जा सत्संग करती है। जब प्राण ऊर्जा नहीं करती तो आप जान टू टेक हेल्प ऑफ द पिल्स की, जब दवाइयों का चलते हो। पर दवाइयाँ जो हैं टेम्परेरी इफेक्ट है। आपका जितना जो आपके कैंसर है, डिमेंशिया है, पार्किंसन डिजीज़ है, ये सारे की सारी माइंड से होती है। माइंड मीन सूक्ष्म शरीर से, अंदर से होती है। फिजिकल बॉडी में तो बाद में आती है। फिजिकल बॉडी में आ गए और पत्ते आ गए ना, रूट तो अंदर है, तो आपका जो डॉक्टर है वो पत्तों को काट देगा और रेडिएशन करेगा, उसके बाद कोई चारा नहीं है। पर उसको नहीं पता कि आपका कैंसर तो बहुत पहले का स्टार्ट हो गया है, पहले का हो गया है, क्योंकि आपने सारे ब्लॉक कर रखे हैं। तो प्राण ऊर्जा, आप डोंट वेट कि कोई मेरे पास आएगी, आप राइट फ्रॉम टुडे स्टार्ट दिस, कि आपको कोई प्रॉब्लम लेट स्टेज में ना आए, बिकॉज ये गुप्त अंदर है, कोई माइक्रोस्कोप लगा भी नहीं हुआ कि अंदर क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट में आता हूँ कि इन्होंने एक भाषण दिया था न्यू ईयर्स पर, योगानंद परमानंद जी ने, कैलिफोर्निया में 2 जनवरी 1944 में। उन्होंने कहा कि हम न्यू ईयर्स कैसे मनाएं, और ब्यूटीफुल है।
हाउ शुड सेलिब्रेट आवर न्यू ईयर, क्योंकि जो 9 जनवरी को उन्होंने दिया भाषण, वो ये कहते हैं, पहला उन्होंने ये कहा कि बचपन से इतनी बच्चों में इतनी हैबिट स्ट्रांग क्यों हो जाती है। एक बच्चे ने आज तक शराब पी नहीं है, चला जाता है एक दोस्तों के पास, वहाँ उसे शराब पीता है, एकदम स्टार्ट लाइकिंग द शराब, कभी उसने देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हैबिट्स शुरू पिछले जन्म की हैबिट्स है। वो बोलता है कि हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल एंटीक है। अब बड़ा क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल एंटीक मतलब है कि सारी पुरानी चीज़ें हमने यहाँ जमा ब्यूटीफुली म्यूजियम बना रखा है। आज का म्यूजियम नहीं है, वो लोधी वंश है, तुगलक वंश है, खिल्जी वंश है, मुगलक वंश है, फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया, फिर हम आज़ाद हो गए, पर वो चीज़ें हमारी की हमारी वैसे ही पड़ी हुई हैं। हमारा जन्म तब भी हुआ था, हम तुगलक वंश में भी थे, मुगल वंश में भी थे, पर हमारा जो एंटीक है, सजा रखी हैं चीज़ें, तो यही चीज़ है कि आप न्यू ईयर्स मना रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि पिछले साल जो आपकी हैबिट्स थी, क्या आपने कोई सुधार लाए हैं? क्या आपने सुधार लाए हैं? इस साल आप मना तो रहे हो कि विश हैप्पी न्यू ईयर्स, और उसके बाद डांस करना शुरू कर देते हो, तो क्या बनना आपका? आज प्लेज करो कि आज से मैं पर्टिकुलर हैबिट को आज से और इसको छोड़ूंगा, और नेक्स्ट ईयर में एनालाइज करूंगा कि आज और नेक्स्ट ईयर में क्या फ़र्क आया है, तब तो न्यू ईयर्स मनाने का कोई सिग्निफिकेंस है। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा, हमारे सीन सारे लोग एक ही काम करते हैं, सुबह उठो, फिर जो गेटअप, फिर खाओ पियो, फिर काम पर जाओ, फिर रात को एंटरटेनमेंट करो, फिर रात को सो जाओ। आपने कुछ चेंज किया है पूरे दिन में? ये जो नॉर्मल रूटीन हम सब लोगों का है, पर आपने कुछ पूरे दिन में अपने आप को चेंज किया है? तो वो कहते थे कि आज प्लेज करें कि आज से नेक्स्ट ईयर जब होगा तो हम इस आदत से पूरी तक छूट मानेंगे। अब नेक्स्ट है क्या विल पावर और मेडिटेशन से हम ये बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो योगानंद जी ये कहते हैं कि अगर बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है तो आप ये फ़ोन का रिकॉर्डिंग को ख़त्म करो। ये फ़ोन का रिकॉर्डिंग जो बैड बार बार सोचते रहते गंदी चीज़ों की, तो नेगेटिव साइड हर दफ़ा वरीज चिंताएँ ये रिकॉर्डिंग है। फ़ोन का रिकॉर्डिंग होती है एक ग्रूव को और गहरे करते रहेगी। फार्म योर ग्रूव मोर डीपर एंड डीपर। तो फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग को ख़त्म करो, यो डिवर्ट योर अटेंशन टू समथिंग एल्स। पहले तो ये करो, और दूसरा कहता है विल पावर। अब विल पावर क्या होती है? विल पावर होती है टू कट डाउन योर you control your short-term gains, control your short-term temptations to get the long-term rewards. शॉर्ट टर्म जो टेम्पटेशन है उनको ख़त्म करो, अदरवाइज आपके जो टेम्पटेशंस हैं वो कहता है ये आपकी जो चीज़ें हैं ये पॉइजन कोट है, ये पॉइजन कोट की हुई है टेम्पटेशन। शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर अल्टीमेटली आपको डेथ ही आएगी, कुछ नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा, ये पॉइजन कोट है, इसको जो अंडरस्टैंड दिस फुल्ली, तो आपको विल पावर से इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो विल पावर पहले यह है कि क्या विल पावर इनहेरेंट है या विल पावर को डेवलप किया जा सकता है, बोथ साइड। तो योगानंद जी कहते हैं दोनों, बोथ साइड। इट इज इनहेरेंट आल्सो, यू कैन डेवलप आल्सो। इनहेरेंट कैसे है? एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसका था डिले इन ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि पर डिले करना। उसने टॉफियाँ रखी, बच्चों को बुलाया, कहता बच्चों आप 5 मिनट रेजिस्ट करोगे तो आपको एक टॉफ़ी मिलेगी। जिस बच्चे ने 10 मिनट रेजिस्ट किया उसको 2 टॉफ़ी मिलेगी, जिस बच्चे ने 20 मिनट आपको रेजिस्ट किया उसको 3 टॉफ़ी मिलेगी। तो रख दिया, टाइम स्टार्ट हुआ, 5 मिनट जैसे ख़त्म, घंटी बजी, सब अंकल टॉफ़ी, अंकल टॉफ़ी, अंकल टॉफ़ी। नहीं इसका पर 75% बच्चों ने 5 मिनट में टॉफ़ियाँ ले ली, बाकी 20% बच्चों ने 10 मिनट लगाए, और 5% ही बच्चे थे
जिन्होंने 30 और वो 5% बच्चे वो उनकी देखा गया कि क्लास में भाई टॉपर आते हैं, उनको बाद में फ्यूचर में देखा गया भाई उस साइकोलॉजिस्ट ने उन 5 बच्चों का ट्रैक किया तो वो कहता हर फील्ड में वही फर्स्ट आते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग है। तो विल पावर स्ट्रांग बच्चों में ही होनी चाहिए, इट रिक्वायर डिसिप्लिन। और दूसरा है क्या हम इसको डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हो। छोटे छोटे संकल्प करो कि 5 जैसे सिगरेट पीता है, मैं 5 दिन सिगरेट नहीं पीऊँगा, फिर हो गया, फिर 10 दिन नहीं करूँगा, फिर 15 दिन नहीं करूँगा। ऐसे छोटे छोटे संकल्प करो। अब जैसे जिसको शुगर है कि मैं बिना चीनी के चाय पीऊँगा, अरे वो करता रहेगा, बाद में उसका ऐसा होगा कि आदत पड़ जाएगी बिना चाय के, वो खुश हो जाएगा। वो जब पहले आदत थी, अब उसकी आदत हो गई है कि अब डायबिटीज भी ठीक हो गई है, स्टिल ही वहाँ से शुगरलेस थी। ये आदत आपको बनानी है। और ऐसे ही एक आदमी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उन्होंने बोला कि आप 15 दिन तक आप संकल्प करो, मैं टॉफ़ी नहीं खाऊंगा, मैं कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं पेस्ट्री नहीं करूंगा, मैं घी व तला हुआ नहीं करूंगा। इसके बीच में किसी का बर्थडे भी आ जाता है, कोई बोलेगा भाई पेस्ट्री के लो, ये केक ले लो, तो आपको रिस्ट करना है। बिकॉज जब तक आप अपने को रिस्ट नहीं करोगे आपकी विल पावर नहीं बढ़ेगी। हाँ, एक और अच्छा है कि 5 मिनट आप 5 घंटे आप चुप रहो, और लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल है 5 घंटे चुप रहना, पर 5 घंटे के चुप रहते हो तो आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। यू कैन डेवलप दिस वन, दिस इज गुड फॉर लेडीज। ऐसे अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक, मेडिटेशन से अब अपने ये बैड हैबिट्स को कैसे सुधार कर सकते हो। मेडिटेशन से आप तब कर सकते हो क्योंकि जितनी ग्रीव्स आपके ऑलरेडी ब्रेन सेल में ये ग्रूव्स बन गए हैं, इट कैन बी ओनली इरेज इन द स्टिलनेस, मौन, टोटल कॉमनेस, मौन, पूरा मौन हो, स्टिलनेस हो। स्टिल में आपके जितने थॉट्स हैं सब स्टिल हो जाएं। इस स्टिलनेस में, इतनी मौन में आपका ये जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में और सोल के बीच में डार्क क्लाउड्स हैं विचारों के। ये जितने अंदर विचार पड़े हुए हमारे, इतने विचार हैं, इतनी भीड़ जमा हुई है अंदर विचारों की। इन विचार काले काले बादलों की तरह हैं जो हमारी सोल के लाइट को उन्होंने रोक रखा है। इस सोल की लाइट को आपने जगाना है। अंदर जो सोल है, सोल जहाँ पर है, जगाना है। जैसे सूरज की लाइट बंद हो जाती है, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ज़मीन पर नहीं पड़ती। ये डार्क क्लाउड्स आएंगे तो सूर्य की लाइट आएगी। ऐसे ही इन डार्क क्लाउड्स को हटाना है। वो डार्क क्लाउड जो हटेंगे तो सोल की लाइट आपके ब्रेन सेल में पड़ेगी, वही वो तब होगा टोटल स्टिलनेस होगी, आपके थॉट्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब ये योगानंद जी बोलते थे कि मेरा तो माइंड, जब मैं योग मेडिटेशन करने बैठता था, मेरा नहीं लगता था। 2 मिनट के बाद ये मेरे जो थॉट्स और तंग करते रहते थे। मैंने अपने योगेश्वर जी फिर गुरु जी के पास किया, उन्होंने फिर बोला क्रिया योग, क्रिया योग, क्रिया योग, ओनली सॉल्यूशन। बिकॉज आपके विचारों को जो बांध सकता है वो हमारी सांस से बांध सकती है, और कोई नहीं बांध सकता। सांस से ही बांध सकती है आपके विचारों को। उन्होंने ये कहा था कि आज जो विचार मुझे आ रहे हैं, आज के बाद ये विचारों की संख्या बढ़ेगी। उस वक्त ना मोबाइल होते थे, ना व्हाट्सअप होते थे, और विचारों की संख्या बड़ी कम होती थी। एक साइंटिस्ट ने स्टडी की कि 1923 में जितने विचार थे हमारे में, और 2023 में 100 साल में हमारे विचार कितने बढ़े। उसने लिखा 72% विचार बढ़ गए हैं इन 100 ईयर्स। ये 2023 की बात है, तो आज 80-85 होगा। तो ये विचार बढ़ते क्यों हैं? अब यहाँ आना पड़ेगा कि विचारों क्यों बढ़ रहे हैं हमारे। द मेन काज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस क्यों होता है कि एक तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बच्चों में इतना कंपटीशन हो गया है। 95% बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती, 97-98% जब तक नहीं लाओ अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती। इतना कंपटीशन बच्चों में हो गया, तो स्ट्रेस लेवल बच्चों में बहुत हो गया बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। दूसरा है जॉब इनसिक्योरिटी।
तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी यूथ है सारा अनस्ट्रेस्ड है। और पांचवा है महंगाई। छठा ये व्हाट्सअप और जो है ये सबसे ज़्यादा है, हर दफ़ा व्हाट्सअप करते रहो, अंदर विचार बढ़ते जाते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि हम नहीं देखते उसको। और फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो एक कमाता था सारे खाते थे, अब अलग अलग हो गए हैं, अब उनको भी स्ट्रेस है कि हमको अपने पैरों में खड़ा होना है। तो इतने विचार हैं, तो इससे आपके विचार बढ़ने, इनको ख़त्म कैसे करना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, ये लास्ट में बताया था, जो नहीं आए उनके लिए फ्रेश होगा, जो आए हैं वो दोबारा सीख लें। ये क्रिया योगा कैसे करनी है, और क्रिया योगा से आप अंदर के जो अंदर वाला प्राण ऊर्जा है, अंदर वाला जो फिजिशियन है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसको कैसे जागृत करना है प्राण ऊर्जा को। तो पहला तो ये है कि आपने आपको डीप ब्रीदिंग से यहाँ पर आपने नाक पे ध्यान देना है। मेडिटेशन के लिए चिन्ह मुद्रा में बैठना है, जेंटली आंखें क्लोज करनी है, प्यार से पूरा रिलैक्स करना है, अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है। सुखासन में बैठो, चेयर पे बैठो, पर ये सीधी रखो, तीनों चीज़ सीधी रखो। ये करने के बाद आप डीप ब्रीदिंग करो, यहाँ से करिए। ये डीप ब्रीदिंग से आप 5 ऊपर 5 नीचे काउंट करके ले आना। अब ध्यान सांसों की तरफ है या काउंटिंग की तरफ है, बाहर के ध्यान आप अपने ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाओगे। क्या आपका ध्यान इधर ही आ रहा है, मैं 1 2 3 4 5, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सांसों की तरफ होगा या काउंटिंग का नहीं होगा, इसी अंदर ही है। जो आर क्रियाज आर इनसाइड, एक्सटर्नल कटअप हो गया आप। तो ऐसे आप 6 राउंड करोगे, तो 6 राउंड में मतलब 1 मिनट करना है, एक राउंड, ऐसे 6 राउंड। तो इससे जितने आपके 72 नाड़ियाँ हैं वो अनब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी, प्राण ऊर्जा यहाँ आ जाएगी। उसका सारी ऊर्जाएं का केंद्र है हमारी नाभि। नाभि से नीचे एक जगह है, जस्ट नीचे वो द्वार है, सारी प्राण ऊर्जा का वो द्वार है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। अब इसको यहाँ लग ले जाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अंधकार को दूर करना है। अंधकार को दूर करने के लिए आपको काम डाउन करना है। तो यहाँ जितने आपके थॉट्स हैं वो डिप्लीट होंगे यहाँ से थर्ड आई में, क्योंकि ये आपका दिस इज डोर ऑफ योर, ये डोर है, किसका डोर है, आपकी आत्मा का। आत्मा का है पीनियल ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड है सेंटर ऑफ योर ब्रेन के सेंटर है, पीनियल ग्लैंड है। तो यहाँ जब करोगे तो यहाँ आपके 2 केमिकल यूज होंगे, सेरोटोनिन मेलाटोनिन, वो भी आपको बहुत शांत करेगा। तो आपका शांति से आपका जितना अंधकार है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऐसे 6 राउंड करने हैं, 1 यहाँ से 1 2 ऐसे 6 राउंड करने हैं डीप ब्रीदिंग से, जैसे मैंने बताया। ये 2 हो गए, तो 2 मिनट हो गए। तीसरा मिनट है आपका नारी शोधन। नारी शोधन लास्ट टाइम बताया था कि नारी शोधन और अनुलोम विलोम में फर्क यह है कि नारी शोधन को रिटेंशन है, रिटेंशन करनी है आपको, सो रोकना, सांस को रोकना है। तो आपको क्या करना है, ये देखो, ये वायु मुद्रा है, ऐसे करके यहाँ से लेफ्ट साइड से करना है, 5 गिनना है, फिर डीप ब्रीदिंग 5 गिनना है, यहाँ रोक लेना है, फिर इसको रोक लेना है, फिर 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, फिर इधर से छोड़ना है, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर करना है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ये 30 सेकंड का एक राउंड होगा, 30 सेकंड का राउंड होगा एक। अनुलोम विलोम में 20 सेकंड होता है, या 2 रिटेंशन आ जाती है। रिटेंशन से क्या होता है, कई लोग रिटेंशन से क्या होता है कि जब आप रिटेन करो तो यहाँ आप ध्यान करो, आपके नाभि के नीचे क्या हो रहा है, खिंचाव आएगा। अब सुनो, खिंचाव आएगा। आप सोडा वाटर की बोतल आप करते हो तो आपको पकड़ लेते हो ऊपर से, क्यों करते हो, जब खोलते हो तो जोर का आता है, अंदर से दबाव आता है। यही यहाँ पर होता है, जब रिटेंशन करते हो तो जब सांस से छोड़ते हो तो ये ढक्कन खुलता है, पूरी ऊर्जा आ जाती है। दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस अनुलोम विलोम।
और अनुलोम विलोम का एक और बताता हूँ, आपको सम करना है। एक ये चंद्र नाड़ी, ये है सूर्य नाड़ी, 3 नाड़ियाँ हैं प्रमुख। 72,000 में 3 नाड़ियाँ हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और एक है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये तीन दोनों को, इसको करने से क्या होता है, बहुत शांति आती है। और इसको करने से क्या होता है, बहुत ताकत आती है। आप काम करने के लिए जाते हो तो ये आपका उत्तेजित हृदय में काम करना है, शक्ति आनी चाहिए। पर आपका माइंड अगर काम डाउन नहीं है, अगर ये बंद पड़ा है नोज, तो आपका बॉस आएगा, शक्ति दिखा दोगे, आप काम डाउन नहीं है तो गुस्सा जल्दी आ जाएगा। पर अगर ये चलता रहे तो काम कब करोगे, फिर आप काम कब जाओगे। तो आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसलिए आपको सम करना है। सम करने का मतलब है एक थर्ड शक्ति पैदा होती है जिसका नाम दिव्य ऊर्जा। तो आप दिव्य ऊर्जा को, ये चौथा जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, इस दिव्य ऊर्जा को आप स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ले जाना है। आपका स्पाइनल कॉर्ड, अब मैं ध्यान दो लोगों, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट जस्ट मांसों हड्डियों का, बोन्स का, या 33 नहीं बना हुआ। दिस द पाथवे टू रीच गॉड। ये 33 वर्टिब्रास, ये सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर आप नीचे से लेकर, कहाँ से, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक जा सकते हो। थ्रू दी 33 वर्टिब्रास, या उसके थ्रू जाओ, या वुडन खटोला कर जाओ, या आप लिफ्ट से जाओ, कैसे ही जाओ। आपको जो एनर्जी है फ्लो करानी है सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसके सेंटर से ले जानी है। क्यों? कि उसमें 6 आपके स्पाइनल सेंटर्स हैं, 6 स्पाइनल सेंटर्स हैं। जितनी आपकी बीमारियां हैं, आज सुन लीजिए, जितनी आपकी बीमारियां स्पाइनल कॉर्ड में हैं, जिनको फ्रैक्चर हुआ है, जिनको बैकबोन है, ये क्यों हुई हैं? क्यों हुई हैं? कभी धक्का, आप डॉक्टरों ने तो कैल्शियम दे दिया, वो दे दिया, इंजेक्शन दे दिए, ये तो आउटर अब प्रॉब्लम डेवलप हुई है, तो डॉक्टरों ने, जो बाहर वाले डॉक्टरों ने तो ये करेंगे, या ऑपरेशन करो, और कुछ नहीं है। पर तो हुई है, इस 6 जो सेंटर है ना, ये नेगेटिविटी, ये ब्लॉक पड़ी हैं। ये जैसे मैंने बोला था कि आपके 72,000 ब्लॉक पड़े थे और आपने उसको खोला तो आपके तीनों रोग खत्म हो गए। ये किया था ना, यहाँ पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऐसे ही ये जो 6 स्पाइनल सेंटर है, ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पोरस हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस वहीं से आता है। आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गया है, आप डॉक्टरों को पास जाते हैं, डॉक्टर पर कोई चारा नहीं होता, इंजेक्शन दो या कैल्शियम की डोज बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ाओ, यही है। नहीं होता तो फिर ऑपरेशन करो। तो ये जो कराओ, इससे आपका ऊपर नीचे होगा 6 स्पाइनल कॉर्ड जो हो गए, पूरी एनर्जी जब ऊपर जाएगा पूरे स्पाइनल कॉर्ड सही हो जाएंगे, पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट एनर्जी सेंटर है, इतनी एनर्जी आएगी कि इतना जब ऊपर आएगा तो 60% आपके यहाँ पर जो 60% रह गया, जो डार्कनेस, जो विचार, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से करना है, 6 टाइम गिनना है। देखिए, आप ध्यान करना है कि मैं 6 जो सेंटर हैं, पहला सेंटर है आपका रूट चक्र में, ये 6 सेंटर है आपके चक्र हैं जो, उनके सेंटर हैं, ये स्पाइनल सेंटर। पहला रूट चक्र, दूसरा आता है ये नाभि और उसके बीच में एक सेंटर है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है नाभि वाला सेंटर, चौथा ये हार्ट, पांचवा ये थ्रोट और छठा अर्जना। ये 6 स्पाइनल सेंटर है। तो आपने इनको ध्यान करना है, आपको रोकना नहीं है। ये स्टेशन आएंगे ऊपर नीचे, लिफ्ट पर आ जाके ऊपर जाके, ये स्टेशन आते रहेंगे, आपने रुकना नहीं है, बस धीरे ले जाओ। लंबी सांस लेकर 6 गिनना, 5 या 6 गिनना, 6 गिनते गिनते ऊपर जाना है। तो ये पूरा हो जाना, फूल जाने, ये नीचे हो जाना, इसको 6 सेकंड लगाने हैं। ऐसे 15, ये आपको 12 सेकंड लगे ना, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 सेकंड, ऐसे 15 राउंड अप एंड डाउन करने हैं। ये आपका हो जाएगा 4 स्टेप। ये बहुत ही
और परमानंद कहते हैं कि ये क्रिया योग जो आप मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में आप करोगे तो 2 साल की जो क्रियाएं बाकी करते हो ये उसके बराबर है। उनके बायोग्राफ योगी में लिखा हुआ है 1 मिनट क्रिया योग इक्वल टू 2 years अदर स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन। 1 मिनट कि पूरा आपका साथ आपका बॉडी भी ठीक हो रही है, आपका माइंड भी ठीक हो रहा है और परमात्मा को भी पहुंच रहे हो। देखो इससे क्या हो रहा है, आपके थॉट्स भी खत्म हो रहे हैं, आपके बेड आपका फिर बॉडी भी सही हो रही है, पूरी आपके जितने हो था पूरा हील हो रहा है, माइंड भी हील हो रहा है और आपका विचार भी खत्म हो रहे हैं और यहाँ परमात्मा के साथ का मिलन हो रहा है। 4 चीज़ें एट ए टाइम हो रही हैं थ्रू क्रिया योगा। तो इसके बाद जब यहाँ आप कितने मिनट हो गए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 8 मिनट, 2 मिनट जो है बाकी के, आप जब यहाँ आप ध्यान करना यहाँ पर, आप यहाँ देखना कि पूरे आप देखेंगे कुछ दिन करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये लाइट ही लाइट आ गई है। पूरा आप ब्रेन को देखोगे कितनी लाइट है, इतनी लाइट है, पहले इमेजिन करोगे, बाद में मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी लाइट आ रही है, आप वो निकला नहीं है, इतनी लाइट आ रही है कि उसकी लाइट में पूरे के पूरे आपके पुराने कर्म नष्ट हो रहे हैं। योर ऑल ग्रूव्स और बैड हैबिट्स आर रोस्टेड टू एशेस, सारे ऐश हो रहे हैं, पूरे भर रहे हैं। तो आप देखोगे वो यही तरीका है आपके बैड हो के पुराने जो ग्रुप्स हैं ख़त्म करने का, पुराने जो कर्म हैं गंदे कर्म वो भी ख़त्म होगा, परमात्मा से मिलने का भी यही तरीका है। और ये इज़ नॉट ए सिंपल मौन, ये मत बोलो ये मौन है, इज़ नॉट ए सिंपल कि मैं खाली पानी में आ गया हूँ, ये मौन नहीं है, इसमें ही सब कुछ भरा हुआ है, इसमें ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, इसमें ही आपका पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसफार्मर हो रहा है, इसमें ही आपके सारे दुख दूर हो रहे हैं, इसमें ही आपकी डेस्टिनी बन रही है, ये इसमें परमात्मा का मिलन हो रहा है, आपके सारे विशेष भी यहीं पूरी हो रही है। ये कोई मामूली सा मौन नहीं है, दिस स्टिलनेस इज यूनिक वन। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मैंने अभी तक क्या किया था। पहला तो मैंने ये बोला था कि आपका व्हाट इज ए कर्मा एंड डेस्टिनी, ये मैंने बोला था कि डेस्टिनी इज थॉट, सीड ऑफ थॉट है। उसके बोला बाद था कि फ्री विल से हम हाउ कैन वी शेप आवर डेस्टिनी, जो कहते हैं कि जो हमको भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, वो थ्योरी गलत है, वो थ्योरी गलत है। आप बताइए कि योगानंद जी कहते हैं कि 10% है जो गया है, 90% अभी भी आपके पास है। जो पैदा हुआ है गरीब, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर अगर आप मर जाते हो गरीब होगा, दैट इज योर फॉल्ट। और जो मोदी जी हैं वो तो गरीब घर में पैदा हुए थे, नॉट इज फॉल्ट, बट ही हैज बिकम ए बिगेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही आपका इब्राहिम लिंकन वो मोची का पुत्र था और वो बन गया। सो दिस इज ए फ्री विल, दिस इज ए फ्री विल। उसके बाद मैंने बोला था कि आपके हैबिट्स कैसे बनती हैं, पूरा बताया, फिर डेस्टिनी कैसे बनती है और फिर हैबिट्स कैसे बनती है, और हैबिट्स के बाद मैंने ये बताया था कि हैबिट्स के 4 तो बताए थे कितने आप गलत है, आप यू आर पपेट ऑफ दोस, आप पपेट बन जाते हो। योगानंद जी ये बोलते हैं, अब एग्जैक्ट वर्ड जो लिखा हुआ है कि रोमन जो होते हैं कहते हैं वो चैरियट को, प्रिजनर को ना बांध देते हैं, वो घसीटते जाते हैं, हाफ फॉल से देखा आपने, उनको सजा देते हैं। तो आपकी हैबिट्स यही कर रही हैं, आपको घसीट कर ले जा रही हैं, आपके हाथ में नहीं है कि यू आर सन ऑफ गॉड। आपको क्या हुआ है, आज आप प्लेज करो कि इनको अंदर में डालना है, आप जेल ब्रेकर बन जाओ, जेल से बाहर छूट जाओ, ये जो जिन्होंने आपको इतने सालों से तंग कर रखा था इनको अंदर डालकर लॉक लगा दो। आज कोई प्लेज लेना है, बार बार वो कहते हैं, क्रिया योग के माध्यम से आप जेल ब्रेकर हो सकते हो। ये उसके बाद मैंने स्टेप्स बताए थे, क्रिया योग कैसे करनी है, 4 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप है कि आपको प्राण वायु से प्राण ऊर्जा। आप एक और बता देता हूँ
अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कोई लोग ये समझते हैं कि मैं एक्सरसाइज तो बहुत करता हूँ, मैं योगा भी जा रहा हूँ, मॉर्निंग योगा जाता हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, क्या ये सफिशेंट है? क्या ये सफिशेंट है? योगानंद जी कहते हैं सफिशेंट नहीं है, बिकॉज ये सारा जो आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप अपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन हर सेल में जाती है, ऑक्सीजन गैस, और मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनती है। क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, C6 + H6 + O2, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन एंड एनर्जी। यही एनर्जी है जो आप दिन में खाते, जो एनर्जी काम कर रहे हो, ये एनर्जी है आप खाने पीने से जो आ रही है, ग्लूकोज एक्सरसाइज से आ रही है। पर आनंद जी कहते हैं कि आप जब थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आपका गुस्सा वरीज आ जाती हैं, तो जितने आप एनर्जी इकट्ठी की है ग्लूकोज से ज़ीरो हो जाती है। इज नॉट सफिशिएंट। तभी बोलते हैं कि ये प्राण वायु इज नॉट सफिशिएंट, इसको प्राण वायु को प्राण ऊर्जा में कन्वर्ट करो और अंदर से हीलिंग करो। बार बार ही स्ट्रेसिंग कि इज नॉट सफिशिएंट, कि बार मैंने तो ये जा रहा हूँ भोजन मैं ठीक हूँ, नॉट। तो इसको ये करो। और फिर पहला तो ये था कि प्राण वायु से प्राण ऊर्जा 1 मिनट लगा, फिर यहाँ से आप यहाँ लेके 1 मिनट, फिर मैंने 3 मिनट का ये बताया, नाड़ी शोधन बताया, फिर मैंने 3 मिनट का आप नीचे से ऊपर था तो स्पाइनल कार्ड कैसे ऊपर जा सकते हो, फिर 2 मिनट का मैंने मौन के ऊपर आपके साथ बताया। यहाँ आप कुछ एफर्मेशन भी कर सकते हो एंड में कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, जोर बोलो आई एम सन ऑफ गॉड, अपने में ताकत लाओ। तो बाहर के 2 मिनट जो रहते हैं जोश में आओ कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट ऑर्डिनरी मैन, आई एम, आप वाकई सन ऑफ गॉड हो जाएंगे। यहाँ बैठ कर आई एम सन ऑफ गॉड ताकत से, आई एम गेटिंग लव फ्रॉम डिवाइन, अबंडेंस लव फ्रॉम डिवाइन, आई एम vibrantly healthy, really beautiful, I am vibrantly healthy, really beautiful, all my what I need, everything is there। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन लास्ट में बताए वो भी कर सकते हो, पर अपने आप को पूरी लाइट में कर कर पूरा जोश में लाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट टुडे। अगर और कुछ हो तो बताना। थैंक यू। कुछ आपका क्वेश्चन हो प्लीज बताइए। और ये जो ऊर्जा आप रात को भी कर सकते हो 10 मिनट के लिए, और सवेरे भी कर सकते हो। और रात को मैं बता दूं एक बड़ा एडवांटेज है, रात को जब ये करोगे उसके बाद ध्यान में बैठ जाना, और एक मंत्र का जाप ले लो और सारी रात मंत्र का जाप करते जाओ, और ध्यान में ही आपका मन इतना शांत हो जाता है करने के बाद को मंत्र का जाप गूंजता रहता है, पूरी रात आप ध्यान में ही रहते हो। जब बाथरूम के लिए हो गए तो वही आएगा।